Good afternoon, students. Today our topic of study is from Unit 2, as we are discussing about alkaloids in previous 3 lectures. Now the next drug which we are studying today is belladonna. Okay, starting with the topic. First, belladonna herb. Synonym is belladonna leaf and belladonna herb. Biological source मीन्स कहाँ से हमें ये मिलता है. इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट्स ऑफ मीन्स ऊपर के पार्ट्स अबव रूट एरियल पार्ट्स ऑफ एट्रोपा बेलाडोना बिलोंगिंग टू फैमिली सोलेनेसी. ठीक है, आपको याद रखना है, बोटेनिकल नेम को आपने अंडरलाइन करना है. नेक्स्ट इज ज्योग्राफिकल सोर्स. इट इज़ फाउंड इन इंग्लैंड एंड यूरोप. In India, basically it is found in the western Himalayas from Shimla to Kashmir and adjoining areas of Himachal Pradesh. Okay. Next, different parts of this herb. First is Atropa belladonna. आप देखेंगे ये पूरा का पूरा प्लांट है आपका Atropa belladonna. इसकी लीव्स काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं. ठीक है, दिखाई दे रही होंगी आपको. सीड्स आप देखेंगे इसके राउंड सीड्स होते हैं. सीड्स एनलार्ज सीड्स मीन्स उसको माइक्रोस्कोपिकली आपने देखा है एनलार्ज कैसा सरफेस होता है उसका. दीज आर फ्लावर्स. ठीक है, एंड दीज आर बेरीज. बेरीज ऑफ फ्रूट्स यू कैन से. ये इसके बेरीज हैं डार्क कलर के. दिस इज रूट क्लम्प. एक ब्लंच रूट है इसकी, ब्रांच्ड रूट है. ठीक है, इसको बोलेंगे रूट क्लम्प. नेक्स्ट इज यू कैन सी इट क्लियरली. More clearly you can see the berries, green berries. These are mature berries, these are young berries. Okay, next is flowers. Flowers you can see the shape of flowers. ठीक है, it is somewhat looks like a digitalis. Digitalis plant you can you might be well aware about Digitalis lanata. Like Digitalis lanata is a cardiac glycoside, लेकिन that is a glycosidal drug and this is a alkaloidal drug. Glycosidic drug is cardiac glycoside and belladonna is a alkaloidal drug. But the shape of the flowers of belladonna and cardiac glycosidal drug Digitalis is somewhat similar. ठीक है. Next is cultivation and collection. Cultivation of belladonna is occurred at an altitude of around 1400 meters. Means 1400 meters altitude is required for the proper cultivation of this plant. From the sea level is found to be the satisfactory one. ठीक है. Next is belladonna berries are crushed to get the seeds for cultivation. belladonna जो berries हैं उनको crush करते हैं हम सीड्स के लिए फॉर द कल्टीवेशन, प्रॉपर कल्टीवेशन के लिए. मतलब बेरीज को क्रश करेंगे, जो उसमें सीड्स प्रेजेंट होंगे उन्हीं सीड्स को हम सो करेंगे फॉर फर्दर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रॉपर प्रोसेसिंग लाइक वॉशिंग एंड सीविंग इज परफॉर्म. प्रॉपर प्रोसेसिंग होनी चाहिए जब भी आप वॉशिंग करेंगे या सीविंग करेंगे. ठीक है. ओनली हेल्दी सीड्स आर यूज फॉर कल्टीवेशन. हेल्दी एंड फ्रेश सीड, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. Healthy and fresh seeds are required for the cultivation of this particular species. ठीक है. Seeds are sown by broadcasting method in well prepared beds with the application of fungicide like diathon. Diathon is a fungicide which should be applied before the sowing of the seeds in the nursery beds. Okay, you should remind this thing very well in your mind. Whenever you are writing the cultivation collection of a particular plant, herb or any plant species, roots, any type of crude drug, you should understand the cultivation and collection point by point, and you have to mention every single important things like fungicide, which fungicide is added inside the cultivation of the sowing of bed. Cultivation of a particular species by sowing the seeds in the bed. Ab sowing is done in the month of May and July. You should remember this. In the month of May and July, sowing is done of this particular species. Next is seedlings are ready for transplantation by the end of September. Means in the season, in the month May and July, you are sowing the seeds and then transplanted the seedlings. Transplant करेंगे उन seedlings को by the end of the September month. Next is transplanting is done by keeping certain distance between two plants. Means transplanting हम करेंगे, कुछ particular distance maintain करेंगे दो plants के बीच में. And the seedlings are irrigated carefully. जो seedlings आप irrigate करेंगे उसको carefully करेंगे जिससे कि उसमें
कई बार क्या होता है, अगर हम इरिगेशन प्रॉपर ना करें तो हमारा क्या हो जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है, या फिर क्रॉस क्रॉपिंग हो जाती है, या कुछ भी बोल सकते हैं आप, हाइब्रिड बन सकता है किसी पर्टिकुलर उसका। जैसे हम किसी ज़्यादा डिस्टेंस या मेंटेन ना करेंगे, इसीलिए पर्टिकुलर ड्रग का एक पर्टिकुलर मोनोग्राफ होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है। उसी के अकॉर्डिंग हमारे को अपनी ट्रांसप्लांटिंग और सीडलिंग्स और सीड्स को सो करना होता है। अदरवाइज उसमें कुछ भी अल्कलॉइडल कंटेंट या ग्लाइकोसाइडल कंटेंट, कोई भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का जो कंटेंट है वो कम हो जाता है। आगे समझ। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, पोटैश, सुपर फॉस्फेट आर गिवन एज पर द नीड्स, as per the requirement of the fertilizers. These type of fertilizers are used like urea, potash and super phosphate, ठीक है, as per the needs of the particular plant seeds. Next, insecticidal sprays like 7 are also tried when the plant reaches the stage of maturity. एक इंसेक्टिसाइडल स्प्रे आता है बाय द नेम ऑफ 7, यू शुड रिमेंबर दिस नेम 7. 7 are also tried when the plant reaches the maturity, means this 7 insecticidal spray should be provided to the particular plant cultivation जब वो reach हो जाएगा to the maturity stage, ठीक है. The leaves as well as the flowering tops are cut and sun dried. लीव्स को और फ्लावरिंग टॉप्स को कट कर लेंगे जब वो एक मेच्योरिटी स्टेट पे पहुंच जाएगा, और हम उस पर इंसेक्टिसाइडल स्प्रे डाल देंगे, ठीक है. और फिर उसे कट कर लेंगे और सन ड्राई करेंगे, और ड्राइड इन शेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स, ठीक है. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग केयर शुड बी टेकन टू रिटेन द ग्रीन कलर. मीन्स ड्यूरिंग ड्राइंग you should remember the time for which time being you are doing sun drying and for which time being you have to do it in shade drying. So proper simultaneous process आपको follow करना है. means sun dry भी करना है and shade dry भी करना है. उन दोनों को सीधा सीधा follow करते करते आपको उनका green color को retain रखना है, ठीक है, जिससे कि उन leaves का जो green color है वो retain रहे और हटे नहीं. Next, while grading and packing for market, woolly stems and foreign organic matter are rejected. means grading और packing के टाइम पे अगर कोई भी आपका woolly stem means wool जैसा कोई भी stem दिखाई देता है या कोई भी foreign organic matter दिखता है तो उसे reject कर देना चाहिए. The yield per hectare is found to be 200 to 600 kg. Okay. Next is morphological characteristics. Morphological characteristics में color होगा leaves का green to brownish green, flowers purple to yellowish brown, fruits green to brown. odor leaves की, flowers की, fruits की सबकी similar है, slight and characteristic odor. taste is bitter and acrid for everything. size leaves का size है आपका 5 to 25 centimeter in length, 2.5 to 12 centimeter in width. flowers corolla is 2.5 centimeter long and 1.5 centimeter in width. fruits about 10 centimeter in diameter. Next, the shape of the particular plant. Leaves are ovate, means oval shape, lanceolate, oval plus flat with acute apex, decurrent lamina, entire margin is present. Next, flowers campanulate and small reflex lobes of corolla. As you have seen, the shape of the flowers is campanulate. This is known as the shape of flowers of belladonna. This is campanulate shape. Okay. Next, fruits subglobular in shape with numerous flat seeds. ठीक है. Next, अब you can see the microscopical structure of belladonna. It is the structure of root. belladonna root का ये आपका structure है TS means transverse section. You can see ट्रांसफर सेक्शन है, कलरफुल स्ट्रक्चर में आप देखेंगे सबसे पहले डायग्रामेटिक व्यू दे रखा है वो प्लांट का. दिस इज द प्लांट ऑफ बेलाडोना, ठीक है. नेक्स्ट इज ये आपको दिखाया है डिफरेंस जाइलम, कैम्बियम, सेकेंडरी फ्लोएम एंड पेरिडर्म के बीच. देखो जो ये कैम्बियम है, कैम्बियम ही डिस्टिंग्विश करने में हमारे को हेल्प करता है जाइलम की, सेकेंडरी फ्लोएम की एंड पेरिडर्म की. मीन्स ये लेयर्स को अलग अलग करता है. जाइलम फ्लोएम वास्कुलर बंडल के अंदर प्रेजेंट होता है इस पर्टिकुलर कैम्बियम के अंदर, और जो लास्ट बाहर की लेयर है दैट इज नोन एज पेरिडर्म. पेरिडर्म कई बार तब फॉर्म होती है जब कोई इंजरी होती है किसी प्लांट को, ठीक है. बेसिकली वो कॉक का काम करती है.
कभी कोई इंजरी होती है तो प्लांट को, जैसे सपोज हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी में कभी भी कुछ हमारे को हिट कर जाता है या कभी भी क्लॉटिंग होती है, ठीक है, जो क्लॉटिंग होती है, क्लॉटिंग में जो सबसे अपर लेयर होती है वो कब आई, जब हमारे को इंजरी हुई, ठीक है, जैसे ही वो इंजरी हुई तो वो क्लॉटिंग हुई, तो जैसे ही वो क्लॉटिंग होगी उस अपर लेयर को क्या बोलेंगे, पेरिडर्म। आगे समझ। नेक्स्ट इज कॉक। कॉक आप देखेंगे कैसी है, रेक्टेंगुलर शेप है और कितनी लाइंस हैं, 1 2 3 4 5, 5 लेयर्स ऑफ कॉक इज प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे फेलोजन इज प्रेजेंट, मतलब जो कॉर्क के नेक्स्ट वाला एरिया है दैट इज फेलोडर्म एरिया, ठीक है। फेलोडर्म में आपका क्या प्रेजेंट है, फेलोजन की एक जो लेयर आपको दिखाई दे रही है दैट इज अ फेलोजन लेयर, ठीक है, जो प्रोटेक्टिंग लेयर है, नरिशमेंट प्रोटेक्टिंग लेयर है ये। नेक्स्ट इज स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट, ये स्टार्च ग्रेन येलो कलर के दिखाए हैं कि मीन्स इसमें स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी फ्लोएम इज प्रेजेंट, सेकेंडरी फ्लोएम प्रोवाइड्स फूड, लिपिड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट जो ये कैम्बियम था, ये जो कैम्बियम लेयर मैंने आपको दिखाई थी वो ये है, ये येलोइश लेयर दैट इज कैम्बियम लेयर, ठीक है। कैम्बियम लेयर के बाद आपका कैम्बियम के अंदर इंटरनली इनसाइड द कैम्बियम क्या प्रेजेंट है, वेसल्स। वेसल्स प्रोवाइड एयर्स एंड फूड इंटैपमेंट, एंड फूड और वाटर को क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करती है, ठीक है। दिस इज वेसल, दीज आर जाइलम फाइबर्स। ये वेसल्स क्या हैं, ये जो ब्लैंक कैविटीज हैं, दीज आर वेसल्स। और जाइलम फाइबर्स क्या हैं, ये जो बीच में आपका दिखाई दे रहा है, ये फाइबर्स फाइबर फॉर्म में। नेक्स्ट सैंडी बॉल, सैंडी बॉल मीन्स स्टार्च ग्रेन की तरह होते हैं, ये बने होते हैं यहाँ पे स्लज टाइप के। नेक्स्ट इज पेरेंकाइमा सेल्स, पेरेंकाइमा सेल्स प्रेजेंट है एंड वेरियस अदर सेल्स। इसमें मेडुलरी रेस प्रेजेंट नहीं है, तो यही इसमें आइडेंटिफिकेशन है बेलाडोना में। और कल आपने कौन सी ड्रग पढ़ी थी, रोवॉल्फिया, ठीक है। ऐसे ही आप कंपेयर करते हुए चलेंगे तब आपको इजीली समझ में आएगा। अब आप पढ़ लेंगे इसमें माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टरिस्टिक जो हमने उसमें पढ़ी। पेरिडर्म, पेरिडर्म इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू फेलम एंड फेलोजन, ठीक है। फेलम एंड फेलोजन आर लेयर्स ऑफ पेरिडर्म। नेक्स्ट इज कॉक, कॉक few layers cells tangentially elongated and arranged in radial rows, means radial rows का मतलब क्या हुआ, टेंजेंशियली इलोंगेटेड है और रेडियल रोज में है, मतलब आप ये दिखाई देंगे यहाँ पे जो जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट है, इसको आप रेडियल जोन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट जोन्स आर प्रेजेंट। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है रेक्टेंगुलर और सर्कुलर से आपको दिखाई देंगी कहीं कहीं पे, तो इसी को बोलेंगे हम रेडियल tangentially elongated rows. Next is phallogen. Phallogen is not distinguishable through a faint layer can be made out. Phalloderm, few layers, cells tangentially elongated and contains the starch grains and yellowish colored matter. जो आपको yellowish color sludge दिखाई दे रहा था, that is present inside the phalloderm. Next is secondary phloem. Several layers of starch bearing parenchyma with groups of sieve elements, means जो सेकेंडरी फ्लोएम है उसमें आपका क्या क्या है, स्टार्च बियरिंग पेरेंकाइमा सेल्स हैं जिसमें सीव एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है। सीव एलिमेंट्स क्या है, सीव एलिमेंट्स जैसे वेसल्स हो गया एंड वेरियस अदर ट्रैकिड्स वगैरह, ये सब आएंगे यहाँ पे सीव एलिमेंट्स में। फ्लोएम फाइबर्स इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। न्यूमरस सैंडी बेल्स आर प्रेजेंट, अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बेलाडोना रूट एंड लीफ, मीन्स सैंडी बेल्स। सैंडी बॉल्स या सैंडी बेल्स आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये सब आपका सैंडी से एक स्लजी सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं या किसी भी मास में प्रेजेंट होता है स्लज में, ठीक है। न्यूमरस अमाउंट ऑफ सैंडी बेल्स आर प्रेजेंट विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बेलाडोना रूट एंड लीफ विच आर सीन स्कैटर्ड थ्रू आउट द फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं सैंडी बेल्स ये स्कैटर्ड है इनसाइड द फ्लोएम टिश्यू। नेक्स्ट इज Cambium. It is represented in the form of a ring containing 4 to 5 layers of rectangular cells arranged in radial rows. ठीक है. Next, secondary xylem. It forms the bulk of the root and occupied a large area. Secondary xylem consists of largely starch-bearing parenchyma. Means उसमें parenchyma जो present है उसमें basically starch grains present है with several scattered group of vessels. स्टार्च ग्रेन्स के साथ साथ बहुत सारी वेसल्स भी प्रेजेंट हैं 3 to 10 इन नंबर, ठीक है, विच आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद ट्रैकिड्स। मीन्स जो मैंने आपको भी बताया था जो सीव एलिमेंट्स हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, वेसल्स प्रेजेंट है, ट्रैकिड्स प्रेजेंट है, फाइबर्स प्रेजेंट है एंड वेरियस अदर थिंग्स, ठीक है। तो जो वो स्कैटर्ड ग्रुप ऑफ वेसल्स हैं उसमें क्या क्या और भी प्रेजेंट है, ट्रैकिड्स, फाइबर्स एंड पेरेंकाइमा। द ग्रुप्स ऑफ वेसल्स आर मोर टुवर्ड्स द कैम्बियम। प्राइमरी xylem form
द सेंट्रल मास शोज द डिस्टिंक्ट डाई आर्क नेचर। जो ग्रुप है वेसल्स का, मतलब जो वेसल्स आपको दिखाई दी थी इधर, ये देखो वेसल्स का जो ये ग्रुप है, ठीक है, काफ़ी सारे ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, कैविटीज़। जो कैविटीज़ दिखाई दे रही हैं, ठीक है, वो किधर की साइड है, कैम्बियम की साइड है, मीन्स कैम्बियम के इंटरनल पार्ट में है। तो जो प्राइमरी जाइलम है वो क्या करेगा, वो फॉर्म करता है सेंट्रल मास जो शो करता है डाई आर्क नेचर, ठीक है। सेंट्रल मास मतलब सेंट्रली सारा का सारा जो रूट का आपका मास होगा वो कहाँ पे इकट्ठा होगा, प्राइमरी जाइलम में, मीन्स इनसाइड द कैम्बियम, ठीक है। इनसाइड द कैम्बियम आपकी दो तीन चीज़ें हैं, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम। इन सब का बेसिकली काम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, वाटर ट्रांसपोर्ट करना पूरे प्लांट में, और फूड ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, मेन सेंट्रल मास शो करते हैं जो कि डिस्टिंक्ट डाई आर्क नेचर शो करता है, मतलब डुअल नेचर। नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीफ। अब ये है लीफ का, आप स्ट्रक्चर देख लो पहले। ये है आपका टीएस ऑफ बेलाडोना लीफ। ये कुछ एक पार्ट बनाया, मतलब एक सिंगल पार्ट आपका दिखाया है, यहाँ पे शो किया है। इसमें आपके ट्राइकोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। ट्राइकोम मैंने कल बताया था, प्लांट हेयर प्रेजेंट होता है। दिस इज अपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस लेयर है जो प्रॉपर फॉर्म्ड लेयर नहीं है। अब एपिडर्मिस में आपके स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। जब भी आपकी माइक्रोस्कोपिकल लैब होगी तब आप लैब में देखेंगे, जब भी आप लीफ कट करेंगे उसमें एक स्टोमेटा भी दिखाई देते हैं, ठीक है। दैट स्टोमेटा इज दिस। उसके बाद आपकी लेयर्स है पैलिसेड सेल्स की, मैंने कल बताया था। पैलिसेड सेल्स क्या करते हैं, वाटर रिटेन करते हैं हमारा ड्रग के अंदर, ठीक है, या हर्ब के अंदर। नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स इज प्रेजेंट इनसाइड द फ्लोएम एंड जाइलम, ठीक है। ये आपका बेसिक जो चीज़ इसमें ध्यान रखने के लिए है वो ये स्ट्रक्चर है। इसको प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे, इतना छोटा सा ड्रॉ नहीं करेंगे, ये मैंने आपके समझने के लिए लिखा है। नेक्स्ट में पढ़ लेंगे हम एपिडर्मल सेल्स विद स्लाइटली साइन्यूअस एंटी क्लिनिकल वॉल। मीन्स जो एपिडर्मल सेल्स हैं उसकी जो वॉल है उसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लिनिकल वॉल है। और उसमें जो क्यूटिकल है, क्यूटिकल क्या होता है, जो आपकी एपिडर्मिस लेयर होती है, ठीक है। जैसे ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस लेयर के ऊपर आपकी एक थिक एक ऐसी सेल बनी होगी, सिंपल, ठीक है, सिंपल मोटी जैसे फैटी लेयर होती है वो बनी होती है। उस फैटी लेयर को क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, अपर एपिडर्मिस के ऊपर, ठीक है। जो कि क्या प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और इंजरी से प्रोटेक्ट करती है प्लांट को, ठीक है। इसमें एनाइसोसाइटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोमेटा अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइकोम्स में भी मैं एक प्रेजेंटेशन दूंगी आपको, या फिर नोट्स प्रोवाइड करूंगी जो कि आप खुद से पढ़ लेंगे, या मैं एक्सप्लेन कर दूंगी एक बार, ठीक है। तो स्टोमेटा कितने टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप के स्टोमेटा होते हैं, लेकिन इसमें कौन से टाइप के स्टोमेटा प्रेजेंट है, एनाइसोसाइटिक स्टोमेटा। अब एनाइसोसाइटिक स्टोमेटा क्या होता है, उसमें क्या होता है, दो सब्सिडायरी सेल्स होती हैं और दो सब्सिडायरी सेल्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, और उसके बीच में दो गार्ड सेल्स होती हैं जो स्टोमेटा के ऊपर होती हैं। और वो जो गार्ड सेल्स के ऊपर दो सब्सिडायरी सेल्स हैं वो इक्वल हैं, और उसके साथ एक छोटी है सेल, मीन्स एक सब्सिडायरी सेल छोटी सेल है कंपेरेटिव टू टू अदर्स सब्सिडायरी सेल्स, ठीक है। ये है इसका मेन डिफरेंस। यूनिसेरिएट मल्टीसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट, मतलब सिंगल लेयर मल्टीसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम्स, ठीक है, सिंगल लेयर मल्टीसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। These are glandular trichomes. There are glandular trichomes which are uniseriate and with unicellular heads, means कुछ अमाउंट में कवरिंग ट्राइकोम्स प्रेजेंट है और कुछ अमाउंट में ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स भी प्रेजेंट हैं। इसमें जो आपका पैलिसेड रेशियो है वो है 5:7। इट्स नॉट मैंडेटरी टू राइट दिस पैलिसेड रेशियो एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में आपका आएगा टोटल अल्कलॉइडल कंटेंट ऑफ ड्रग इज 0.4 to 1%, विच वेरीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट रूट्स, ठीक है। 0.6 स्टेम्स में कितना है अल्कलॉइडल कंटेंट, मतलब वेरी करता है कौन से पार्ट में कितना परसेंट आपका अल्कलॉइडल कंटेंट है, ठीक है। स्टेम में 0.05%, लीव्स 0.4%, अनराइप एंड राइप बेरीज 0.19 to 0.21% एंड सीड्स 0.33%, ठीक है। तो इसमें जो मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट या मेन अल्कलॉइडल कंटेंट है, दैट नेम इज L-hyoscyamin. L is levohyoscyamin and its racemic form atropine. The racemic form of hyoscyamin is known as atropine, ठीक है।
The drug also contains belladonna, scopolamine, hyoscine, pyridine, and N-methylpyrroline. These words you have to remember, you have to mug up. ठीक है. The later two are the volatile bases. जो ये pyridine and N-methylpyrrolidine है, ये volatile है nature में. Next you can see the structure: atropine, hyoscine, hyoscine and homoatropine. एक चीज़ आप देखेंगे इसमें, ये 6 membered ring सब में सिमिलर है. ठीक है, ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर बार बार ड्रॉ करके याद रखने होंगे. नेक्स्ट इज यूजेस. इट इज यूज्ड एज अ सेडेटिव to stop bronchial spasms in asthma. When a patient is suffering from asthma, then he or she will have felt the bronchial spasms. ठीक है, तो उसको बेलाडोना क्या करता है, कुछ अमाउंट तक सडेटिव मतलब सडेशन प्रोवाइड करता है, ख़त्म करता है. ठीक है, वूपिंग कफ में भी ये यूज़ होता है एंड एज अ कोल्ड एंड अ हे फीवर रेमेडी. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर पार्किंसंस डिजीज़. पार्किंसंस डिजीज़ क्या है, ब्रेन डिसऑर्डर है जो कि ग्रेजुअल लॉस करता है मसल कंट्रोल का. ठीक है, मोशन सिकनेस में यूज़ होता है और एज अ पेन किलर भी. बेलाडोना इज यूज्ड इन ऑइंटमेंट्स ऑल्सो दैट आर अप्लाइड टू द स्किन फॉर जॉइंट पेन. मीन्स रिमेटिज्म की जो आपकी ड्रग्स होती हैं, जॉइंट पेन की जो ड्रग्स होती हैं, उसमें भी रिलीव करता है. Leg pain caused by a disc in the backbone pushing on the sciatic nerve. Sciatica, you have heard this term sciatica, which is a very common disease nowadays from basically in females. ठीक है, leg pain caused by a disc in the backbone pushing on the sciatica means sciatica की जो herb है, sciatica के लिए जो drug आप यूज़ करते हैं उसमें भी कुछ अमाउंट में बेलाडोना प्रेजेंट होता है एक पर्टिकुलर डोज पे. एंड यूज्ड इन न्यूरल्जिया. न्यूरल्जिया इज द नर्व पेन. ओके. It is also used in plasters for treating psychiatric disorders, a behavior disorder called hyperkinesis. ठीक है, it is also used in the treatment of excessive sweating. Excessive sweating को क्या बोलते हैं, hyperhidrosis. Means excessive sweating के लिए जो एक term है आपकी वो है hyperhidrosis and bronchial asthma. Next, chemical test. केमिकल टेस्ट में आपका आता है विटाली मोरिन टेस्ट. विटाली मोरिन टेस्ट ये कैसा टेस्ट है, इसमें कैसे टेस्ट करेंगे कि इसमें अल्कलॉइड प्रेजेंट है कि नहीं है. अ ड्रॉप ऑफ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इज एडेड इट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ एनी सोलिनेशियस ड्रग. मीन्स कोई भी अल्कलॉइडल ड्रग होगी उसमें आप एक ड्रॉप फ्यूमिंग HNO3 डाल देंगे. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देन इट इज सब्जेक्टेड टू इवेपोरेशन टू ड्राइनेस ऑन अ वाटर बाथ. देयर आफ्टर इट इज कूल्ड एंड ऑन एडिशन ऑफ 2 drops of 5% alcoholic potassium hydroxide solution, purple color is formed which indicates the presence of tropane alkaloids. ठीक है, when the purple color shows the presence of tropane alkaloid in this particular alkaloidal category drug. नेक्स्ट इज एडल्टरेंट्स. एडल्टरेंट्स में आपका स्कोपोलिया जेपोनिका, इट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ एडल्टरेंट विच इज कॉमनली यूज्ड एज एडल्टरेंट इन द हर्ब बेलाडोना. एंड स्कोपोलिया जेपोनिका को बेसिक नाम है जापानीज बेलाडोना. ठीक है, थैंक यू. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन गूगल क्लासरूम.